Hello students, welcome to Unacademy platform. This platform provides you daily live classes, structured course, live test quizzes, and unlimited access subscription. You can also download an Academy Learning app available on Google Play as well as Apple App Store. And this is about me. This is my Unacademy profile link. This is my Telegram link. These are the examples of structured courses, and these are the different subscription plans available in the platform. If you go with Plus, you have live classes, series, unlimited practice, structure schedule. And if you choose Iconic, you have this additional benefit, which is mainly about personalized attention. Okay, personalized attention. All these plans, subscription plans, are available at 10% discount. You apply the code Amit. Okay, again, these are the plans available at 10% discount. Apply the code Amit PS. Submit is to take place on January 30 and 31st. You can register for it. These are the speakers who are taking part, and this is actually a guide for the events. These are the new batches which are starting in the platform. Batches starting from 1st February and batches starting February. Okay. Firstly, Iconic subscription price is going to increase. So it is advisable to subscribe for it even before there is an increase here. Okay. Again, these are the subscription plans of different durations of GS and optionals. All these are available at 10% discount if you apply the code with PS. With PS. Okay. Okay. So actually this is about the citizenship. Okay, citizenship. In my previous lectures also I have discussed about it. इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बात करूंगा सिटीजनशिप में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का जो आइडिया है और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उस उसके बारे में ये डिस्कशन है ओके so citizenship is the first thing to know is this that it is a membership okay to a political community a membership for in or to a political community ठीक है और ये मेंबरशिप क्या देती है ये मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट देती है ओके राइट देती है ओके और ये नेशनैलिटी से कैसे अलग है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनैलिटी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनैलिटी नेशनैलिटी से कैसे अलग है ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल नेशनैलिटी का क्या मतलब नेशनैलिटी इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन नेशन मीन्स द idea of belongingness 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 का आइडिया ओके तो नेशनैलिटी इज एक डिफरेंट चीज है और सिटीजनशिप एक डिफरेंट चीज है ओके सो सिटीजनशिप में आपको ध्यान रखना है कि इट इज लार्जली कोटर्मिनस विथ नेशनैलिटी ओके आप कह सकते हैं कि सिटीजनशिप is largely coterminous with nationality. Okay, largely coterminous with nationality. लेकिन ये भी पॉसिबल है कि नेशनैलिटी बिना सिटीजनशिप के हो ओके मतलब आप कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू हैव nationality without being a citizen getting it without being a citizen ये चीजें जैसा कि बस ये आपके रिवीजन के लिए है मैं जल्दी से वापस आऊंगा जो आपने अगर मेरे दूसरे मैराथन्स
अगर आप देखें मैराथन सीरीज में, तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ एक्चुअली आपको। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग जहाँ से की थी, जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था वहाँ से मैं आपको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि इट ऑफन इम्प्लाइज व्हाट, वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ one's community. Okay, और कैसे, through participation, through volunteer work, and also by making efforts to improve the life of all citizens. Okay, तो सिटीजनशिप उस सेंस में क्या हो जाता है? सिटीजनशिप in that sense is the political right. Political right बहुत important है. Okay, political right. कैसा political right? It is a political right of an individual. An individual किस चीज के लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में? विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ सोसाइटी. तो क्या ये पॉसिबल है कोई एक कंट्री का सिटीजन हो और किसी दूसरी कंट्री का नेशनल? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. आप कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट वन कैन हैव a citizenship from one country and be a national, okay, of another country. It is very much possible. बहुत पॉसिबल है ये. अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल मैं आपकी बात करूं कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी कंट्री का सिटीजन है और किसी दूसरी कंट्री का वो नेशनल है. ये कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि एक क्यूबन अमेरिकन है. ओके, क्यूबन अमेरिकन का एग्जाम्पल देते हैं. ओके, so that Cuban American might be considered, okay, a national of Cuba. Okay, क्यों? Due to his birth in Cuba. Okay, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका कि कोई एक कंट्री का सिटीजन और किसी दूसरी कंट्री का नेशनल हो सकता है. क्यूबन अमेरिकन एग्जाम्पल समझिए. यहाँ पास एक क्यूबन अमेरिकन, he might be considered the national of Cuba country due to his birth in Cuba. Okay, but he could also become a US citizen. He could also become a US citizen or UK citizen. ओके, कोई भी कंट्री ले लें. और इस केस में अगर नेचुरलाइजेशन की बात करें तो यूएस सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन. ओके, हालांकि आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबा और यूएसए का यहाँ पास एग्जांपल लिया गया है. तो जैसे क्यूबा और यूके के कॉन्टेक्स्ट में, दीज आर द कंट्रीज विच एक्चुअली फॉरबिड ड्यूअल सिटीजनशिप. ओके, dual citizenship or dual citizenship in context of other countries I'm talking about, and this is mainly because of the political tensions that these countries have with each other, America and Cuba. Okay, देखिए, नेशनैलिटी को अगर आप समझें तो नेशनैलिटी क्या है, इस चीज को और थोड़ा ध्यान से समझो. नेशनैलिटी क्या होती है? इट इज मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ बर्थ.
ओके, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, इसको बोलते हैं जस्ट सोली। जस्ट सोली। सोली यहाँ पर सॉइल है इसका। सोली का एक्चुअली रूट वर्ड जो है, सॉइल का रूट वर्ड सोले है। ओके, और कुछ केसेस में ये एथनिसिटी से भी डिसाइड होती है। ओके, एंड इन सम केसेस नेशनैलिटी किससे डिसाइड होती है और किससे डिराइव की जाती है? एथनिसिटी। एथनिसिटी, और उसको क्या बोलते हैं? जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस। ओके, तो ये हुई बात नेशनैलिटी की, जो कहाँ से डिराइव होती है, या तो बर्थ से डिसाइड होती है या फिर एथनिसिटी से। बर्थ से डिसाइड होती है उसको बोलते हैं जस्ट सोली, और एथनिसिटी से डिसाइड जब होती है तो उसको बोलते हैं जस्ट सैंग्विनिस। ओके, लेकिन सिटीजनशिप की अगर आप बात करो तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप की अगर आप बात करें तो इट इज डिराइव फ्रॉम, क्या, किससे डिराइव फ्रॉम? व्हाट? लीगल रिलेशनशिप विद इन अ स्टेट। लीगल रिलेशनशिप विद इन अ स्टेट। ओके, समझ रहे हो आप? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? वो है लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कैन आई से दैट nationality can be lost? Can nationality be lost? क्या इसे खत्म किया जा सकता है? Yes, understand that nationality can be lost. Okay, nationality can be lost. For example, as in denaturalization. Okay, denaturalization के केस में. Okay, or it can be gained also. Okay, can be gained also. Nationality can be gained also by what? By naturalization. By naturalization. Okay, so this was actually a discussion on the difference between citizenship, or the context of these two words, these two terms, that is citizenship and nationality. ओके, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करें, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसमें सबसे पहले चीज़ आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिया को डिक्लेयर करता है। ओके, और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसमें डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? डिस्टिंक्टिव फीचर सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में है कि इट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, इट इज नॉट डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, समझिए। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलता है, लेकिन आप जानते हैं फेडरेशन की कॉन्सेप्ट तो मैंने भी पढ़ा है अपने लेक्चर सीरीज में, और आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी भी कि हम एक फेडरल पॉलिटी है। ओके, बिकॉज देर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। ओके, और सारे के सारे फीचर्स है हमारे यहाँ, बाइकैमरलिज्म है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे फीचर्स हैं जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल पॉलिटी में होते हैं। और फेडरल पॉलिटी में अक्सर देखा गया है कि आप दुनिया के जो फेडरल पॉलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशंस उठाएंगे, कंट्रीज देखेंगे, तो वहां पास हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में डुअल सिटीजनशिप मिलेगी। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया offers or Indian constitution provides for single citizenship and not dual citizenship. ओके, समझ रहे हो आप? ये चीज है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन है जो फेडरल है उनसे अलग करती है, कि मोस्ट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है जो सिटीजनशिप को डील करता है? पार्ट 2। ओके, पार्ट 2। और कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये है जो सिटीजनशिप को डील करते हैं। ओके, ये है टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप जो है इनके द्वारा डील किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आर्टिकल 5 की अगर आप बात करें, आर्टिकल 5 की, दिस इज द एक्चुअली द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या स्टेट करता है? ये करता है कि ये एक्चुअली दिस इज एन आर्टिकल which is based on citizenship at the commencement of the constitution. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 3 तरह के सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर और प्रोवाइड्स 3 काइंड्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, और वो 3 काइंड्स कौन है? ट्रू डोमिसाइल पहला है, तो दूसरा क्या है? ट्रू इमिग्रेशन। ओके, एंड तीसरा ट्रू रजिस्ट्रेशन। ओके, देखिए, आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले, मतलब प्रायर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियंस वर द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यस, एंड द ब्रिटिश सिटीजनशिप एंड द स्टेटस ऑफ एलियंस एक्ट 1940 और 1914 से 1948 तक, ये अप्लाई होता था इंडिया में विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज ऑफ द अदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन। ओके, समझ रहे हो आप? अगर मुझे कि जैसे मतलब प्रायर टू द commencement of the constitution, क्या था? इंडियंस वर द सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ व्हाट? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। ओके, एंड द ब्रिटिश सिटीजनशिप वो क्या थे? एंड द स्टेटस ऑफ एलियंस एक्ट। एलियंस एक्ट, ओके, 1914 to 1948, this applied to India. Okay, I think this piece of information might be new to many of you. Okay, with respect to what? With respect to the other countries of the, as with respect to other countries of the northern British Commonwealth. Okay, और यही एक्ट, स्टेटस ऑफ एलियंस एक्ट, दिस एक्ट वाज एक्चुअली
modified. Okay, that act was modified. This year in 1948. Okay, लेकिन इस एक्ट के अंदर there was nothing like India. There was no such thing as Indian citizenship. इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी, इंडियन सिटीजनशिप जैसी कोई चीज नहीं थी. ओके, और जो इंडियन लेजिस्लेशन था इस मैटर पे वो कन्फाइंड था किसमें, स्मॉल एनैक्टमेंट्स जो रिलेटेड थे नेचुरलाइजेशन से, और उसको पास किया गया था 1926 में. 1926 में किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ कमिंग पर्सन्स हु वर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड. ओके, यू कैन से दैट द इंडियन लेजिस्लेशन okay, the Indian legislation on the matter was confined to a small enactment, okay, relating to naturalization. Naturalization. Okay, naturalization. For whom? ये एक्चुअली पास किया गया था, इट वाज पास्ड इन 1926. ओके, 1926 को पास हो गया. और इसके किसके बेनिफिट के लिए था, फॉर द बेनिफिट ऑफ whom, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दोज पीपल हु वर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड. ओके, समझ रहे हो आप इस चीज के लिए. तो अगर आर्टिकल 5 की मैं बात करूं, आर्टिकल 5 क्या है, ये इल्यूसिडेट करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आर्टिकल 5 elucidates what, citizenship at the commencement of the constitution. ठीक, और ये किनको किनको ग्रांट करता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 की मैं बात कर रहा हूं, तो इट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू, देखिए 3 कैटेगरी है, टू एवरी सिटीजनशिप टू एवरी पर्सन. बड़ी आसानी से आप सीख जाओगे इसको. एवरी पर्सन फर्स्ट क्या है, देखिएगा ध्यान से इसको देखिए, हु हैज डोमिसाइल, डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके, और दूसरा क्या है, पहला तो हो गया डोमिसाइल जिसका है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और दूसरा क्या है, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स मतलब माता या पिता में दोनों को ही, पेरेंट्स वाज बोर्न, ओके, बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. समझे आप. और तीसरा क्या है, those those people who have been ordinarily been a resident for not less than 5 years. Okay, ये तीसरा, who has ordinarily been a resident for not less than 5 years. Not less than 5 years. Okay, समझ रहे हो. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि इट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू एवरी पर्सन. और इस एवरी पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है, ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पास.
Okay, so this expression, every person in Article 5, okay, this includes what? This includes people like prisoners also. Prisoners, member of armed forces. Okay, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 33(1). हालांकि वो आर्टिकल 33 भी आता है वहां पास। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, देर इज इफ अ मैरिड वुमन टेक्स द डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड, whereas a widow के अगर केस में retains that domicile of her husband until changed by her own act, or if separated by a competent court, or is undergoing a sentence of transportation. ओके, यहाँ पास एक ही चीज आपको कंफ्यूज करेगी कि ये डोमिसाइल का मतलब क्या है। ओके, तो डोमिसाइल का मतलब समझिए कि डोमिसाइल का क्या मतलब होता है। डोमिसाइल क्या मतलब होता है? डोमिसाइल मीन्स, ये इसका क्या मतलब होता है? डोमिसाइल का सिंपल मतलब होता है परमानेंट हो, परमानेंट हो। ओके, मतलब ये, इट इज एक्चुअली अ प्लेस, ओके, इट इज अ प्लेस वेयर वन रिसाइड्स। ओके, किस इंटेंशन से? विद द इंटेंशन ऑफ रिमेनिंग देयर, मतलब वहां रहने के पर्पज से, वहां रहने के पर्पज से, वो वहां बने रहने के पर्पज से जहां रिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं डोमिसाइल। जैसे फॉर एग्जांपल, if you are a domicile in India, that means that you are staying in India, or you residing in India with the purpose of remaining in India। समझ रहे हो? तो जिस जिस जगह में, जिस प्लेस में किसी व्यक्ति ने, किसी इंडिविजुअल ने वॉलंटरली उसको अपना घर बना लिया है, सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए नहीं, बल्कि इस पर्पस से कि वो अपना परमानेंटली उस वहीं रिसाइड करना चाहता है, उसको बोलते हैं डोमिसाइल। उसको बोलते हैं डोमिसाइल। ओके, यहाँ पास दो चीजें हैं कि यहाँ रेजिडेंस होना चाहिए। डोमिसाइल में दो चीजें आती हैं एक्चुअली, कि फर्स्ट क्या है कि एक रेजिडेंस, और दूसरा इंटेंशन, इंटेंशन टू रिमेन देयर। ओके, तो ये दोनों चीजों से मिलके डोमिसाइल बनता है। मतलब ऐसा दोनों जहां पास कोइंसिडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, वही उसी को डोमिसाइल बोला जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, आप इसको एक्चुअली, इसके नाम है फैक्टम, इसको बोलते हैं फैक्टम, और इसको बोलते हैं एनिमस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल दो चीजों को इंक्लूड करता है, एक्चुअली टू एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। पहला है फैक्टस, फैक्टस का मतलब a residence of any particular kind, और दूसरा क्या है? एनिमस। एनिमस का मतलब है कि an intention of a particular kind। तो रेजिडेंस और इंटेंशन वही बने रहने का, अगर दोनों किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए है तो उसी को उस इंडिविजुअल का डोमिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 5 जिस डोमिसाइल की बात करता है उसको आपने समझा। ओके, वो है डोमिसाइल का मतलब यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एक चीज और ध्यान रखिए कि रेजिडेंस नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस, लेकिन ये इनडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिडेंस हो सकता है कि चेंज होता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंटेंशन यहाँ पास ये हो कि नहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं 3 साल के बाद। समझ रहे हो आप? तो डोमिसाइल उस सेंस में एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो? हाँ, इस केस में डाइसी ने, जो बहुत बड़े एक्चुअली लीगल एक्सपर्ट रहे हैं, उनका कहना है कि एवरी इंडिपेंडेंट पर्सन कैन एक्वायर अ डोमिसाइल ऑफ हिज चॉइस by a combination of two factors. The first is actual residence in a particular place,
और दूसरा है इंटेंशन, इंटेंशन टू रिमेन देयर। ये डाइसी का कहना है, इंटेंशन टू रिमेन देयर परमानेंटली। ओके, intention to remain there permanently or for an indefinite period of time। तो इन दो फैक्टर्स के साथ डाइसी बोल रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी जगह को अपना डोमिसाइल बना सकता है। ओके, ये दो फैक्टर्स जो है इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए है, किसी इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो इंडिविजुअल वहां का डोमिसाइल बन जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये चीज थी आर्टिकल 5 को लेकर। ओके, अगर आर्टिकल 5 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 5 के तीन क्लॉज, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी है। तो क्लॉज ए में एक्चुअली क्या बात करना है, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज क्लॉज ए। क्लॉज बी अगर देखें तो वो बोलता है कि ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि तीसरा क्या था, हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और फॉर नॉट लेस देन 5 years। तो ये जो है कंडीशंस ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी which have been given in article 5 are not cumulative but alternative, है ना। और कोई भी एक कंडीशन जो है, उन तीन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन मिल जाए तो ये क्या होगा, वो फुलफिल हो जाती है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। अच्छा, आर्टिकल 5 के रेफरेंस में ये कहा जा सकता है, और इट कैन बी सेड दैट अ डिस्टिंक्शन हैज टू बी ड्रॉन, किसके किसके बीच, बिटवीन डोमिसाइल एंड रेजिडेंस। ओके, for only domicile or mere residence is not sufficient for Indian citizens। सिर्फ domicile और residence sufficient नहीं है, domicile and 5 years residence are necessary to make a person। okay, ये domicile and 5 years residence, that is necessary to make a person the Indian citizen। okay, तो मतलब समझिए कि यहाँ पास आप कह सकते हैं कि domicile may be domicile of origin और domicile of choice। हो सकता है कि डोमिसाइल ओरिजिन से हो, मतलब कि पहले से, और डोमिसाइल चॉइस से भी हो सकता है। ओके, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है एक्चुअली, और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक केस है मोहम्मद रेजा देवस्तानी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का। ओके, तो मोहम्मद रेजा देवस्तानी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा था कि अ पर्सन डिड नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया। ओके, or question in this regarding of the existence of domicile for the state was raised also in another case। वो उसको बोलते हैं डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। तो यहाँ पास डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया ये व्यू कि इट वाज theoretically possible to have a separate state domicile। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इट वाज theoretically possible to have a separate state domicile। ओके, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिकॉज डोमिसाइल डोमिसाइल क्या है, एज रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ लॉ। ये डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत का केस है। ओके, हैव अ सिस्टम ऑफ लॉ बाय विच पर्सन इज गवर्न। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए।
अच्छा, फिर नेक्स्ट आप ध्यान रखें कि डोमिसाइल डोमिसाइल एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का। ओके, सिटीजनशिप। डोमिसाइल और सिटीजनशिप, क्या ये एक ही चीज है? नहीं, ये ध्यान रखें कि दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। These are two different concepts. Okay, these are two different concepts. अलग कॉन्सेप्ट है। और आर्टिकल 5 इसको जो है बहुत क्लियर करता है। और आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग ये चीज बहुत क्लियर है कि डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल अलोन is not sufficient to confer citizenship on a person. Okay, it is not sufficient to confer citizenship on the person. मतलब इसमें ऐसा समझिए कि when we speak of a person having a domicile of a particular country, we mean that in certain matters such as succession, minority, marriage, he is governed by the law of that country. समझ रहे हो? समझ रहे हो कि when we speak of a person as having a domicile of any particular country, we mean that in certain matters such as succession हो गया, minority हो गया, marriage हो गया, he is governed by the law of that country. और citizenship का मैंने आपको क्या बताया था कि it gives right to political participation. तो सिटीजन हो सकता है कि किसी के पास डोमिसाइल हो लेकिन सिटीजनशिप ना हो, ऐसा भी हो सकता है। डोमिसाइल का क्या मतलब है कि अगर कहीं किसी कंट्री का डोमिसाइल है तो ही इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ दैट कंट्री। सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि इफ एनी पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ दैट एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल कम्युनिटी और सोसाइटी इन ए स्टेट, देन दैट पर्सन हु इज अ सिटीजन हैज अ राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ओके, राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ओके, ठीक है। अब समझिए कि if for the same reason, if therefore in one country different laws relating to succession and marriage prevail, okay, in different places and areas, then each area having a distinct set of laws can itself be regarded as a country for the purpose of domicile। एक ही country, okay, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, या फिर समझिए कि किसी कंट्री का मैं एग्जांपल लूं, कंट्री ए है ये। ओके, अगर यहाँ समझिए कि डिफरेंट लॉज सक्सेशन को लेके, मैरिज को लेके प्रिवेल करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। देन ईच एरिया यहाँ जो होगा हैविंग अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ लॉज कैन इटसेल्फ बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट कंट्री विद इन दैट कंट्री ओनली। ओके, किस चीज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ डोमिसाइल, फॉर द पर्पज ऑफ डोमिसाइल। तो डोमिसाइल होने, किसी प्लेस के डोमिसाइल रखने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया के जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसका सब्जेक्ट होना, उसका सब्जेक्ट होना। तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल यू आर डोमिसाइल्ड इन मध्य प्रदेश, ओके, वन इज डोमिसाइल्ड ऑफ यूपी। समझ रहे? आप अपने ही केस में से इंडिया में ही मध्य प्रदेश का कोई डोमिसाइल हो, कोई यूपी का डोमिसाइल, तो मतलब क्या है, दोनों इंडिया के सिटीजन है लेकिन यहाँ पास डोमिसाइल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अ पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन एमपी इज सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय एमपी गवर्नमेंट। समझ लिए? तो डोमिसाइल का यहाँ पास कॉन्सेप्ट समझो आप। A person residing in UP is actually subject to the laws made by UP government, although both are Indian citizens. Getting it? Both are Indian citizens. Okay. अब ये सक्सेशन, मैरिज, इनसे रिलेटेड जो लॉज हैं इंडिया में, ये किसको दिए गए? ये दोनों के पास है, यूनियन के पास भी है और स्टेट के पास भी है। ओके, ये मतलब ये लिस्ट 3 में, कॉन्करेंट में एंट्री 5 है ये, यूनियन और स्टेट में। लिस्ट 3 क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है ना। तो लिस्ट 3 इज एक्चुअली कॉन्करेंट लिस्ट। और पावर टू लेजिस्लेट ऑन सक्सेशन, मैरिज, माइनॉरिटी, ये दोनों के दिए गए हैं, यूनियन और स्टेट। एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू एंट्री 5 इन लिस्ट 3।
ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पास। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें कि जब यहाँ पास बात हो रही है सिटीजनशिप को लेके, तो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ डोमिसाइल इज टू बी केप्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सिटीजनशिप। ओके, समझ रहे हो आप? डोमिसाइल का यहाँ पास क्या मतलब होता है कि कोई किसी पर्टिकुलर लैंड का डोमिसाइल है, वो उस लैंड से में जो लॉज है उनका वो सब्जेक्ट होता है। ओके, और ये लॉज स्पेशली किसके होते हैं? सक्सेशन के, मैरिज के, माइनॉरिटी से रिलेटेड। ओके, समझ रहे हो? ओके, और एक चीज और समझिए कि क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 5 में सक्सेशन को लेके, मैरिज को लेके, माइनॉरिटी को लेके अपने अपने लॉज हो सकते हैं, दोनों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, स्टेट के द्वारा और यूनियन के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है कि यूनियन जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाता जो इंडिया के लिए, तो उसका मतलब होगा कि ईच स्टेट may have its own laws on these subjects, और इसीलिए there could be different domiciles for different states। समझ रहे हैं? For different state। ओके, अच्छा, फिर दूसरे केसेस की अगर बात करें, तो दूसरे केस में कोर्ट ने एक्चुअली ये असर्ट किया है कि देर इज ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज डोमिसाइल इन इंडिया। और आर्टिकल 5 मैंने अभी आपको जो बताया वो डोमिसाइल एज अ कॉन्सेप्ट बताया। ओके, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पास क्या बोला है? कोर्ट ने एक्चुअली बोला है, ये कोर्ट एक्चुअली एक केस है, हालांकि आपको केस नाम रखने की जरूरत नहीं है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है एक्चुअली। ओके, तो प्रदीप जैन, अगर आपको ध्यान ही रखना है तो प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट एक्चुअली रिजेक्टेड, SC रिजेक्टेड द concept of different state domiciles, different state domiciles, it rejected the concept of different state domiciles। और कोर्ट ने क्या असर्ट किया? कोर्ट ने असर्ट किया कि देर इज ओनली वन डोमिसाइल। It asserted that there is only one domicile, only one domicile, और वो डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल ऑफ इंडिया, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। ओके, कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि इंडियन फेडरेशन is not actually the result of the compact of every sovereign states, so it is not a federal state in the ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट इस केस में एक्चुअली ये है कि आप कह सकते हैं कि इन प्रदीप जैन वर्सेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट emphasized, सुप्रीम कोर्ट emphasized that the Indian Federation was not a result of of a compact or contract, result of a compact of sovereign states। Okay, and so it is not, it is not a federal state,
not a federal state in the traditional sense of the term. Okay, बहुत important. Not a federal state in the traditional sense of the term. इसीलिए यहाँ पास डोमिसाइल एक्चुअली जो हर एक जो समझिए कि एक लीगल वे में जिस तरह से डोमिसाइल को डिफाइन किया गया था, यहाँ पास सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया. ओके, so it actually ended the concept of different domiciles, different state domiciles, and asserted that there is only one domicile, and that is the domicile of India. And it also emphasized that our federation, our Indian federation, although it is a federal polity, is not actually the result of any contract. Among the, it is आप जानते हैं कि इंडियन फेडरेशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी क्या बोलते हैं, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ओके, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो फेडरेशन है दैट इज नॉट अ कमिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन, दैट इज अ होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन. It is not a coming together kind of federation because it is not a result of any contract or compact of sovereign states. No, it is not like that. Okay. अच्छा, इस इसी केस में, इसी कॉन्टेक्स्ट में, डोमिसाइल के केस में ही एक दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है लुई डी रेडिट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. ओके, तो उसमें देखिए आप क्या कहते हैं. एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें एक अनदर क्वेश्चन वाज थ्रोन, और इसमें पिटिशनर हु केम टू इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस और दे वर स्टेइंग कंटिन्यूअसली ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन पासपोर्ट जो था एंड रेजिडेंशियल परमिट जो मिलते थे, became citizen of India by virtue of Article 5C of the Constitution. ओके, ये पिटिशन थी, और एज दे वर स्टेइंग इन द वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इधर को इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि दे हैड फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट दे हैड द इंटेंशन ऑफ रिसाइडिंग इन इंडिया. ओके, तो इसमें पिटिशनर्स हु केम टू इंडिया, समझ लीजिए कि यहाँ केस क्या है, केस ये है, this is about the petitioners who came to India before independence, okay, before independence, and were staying continuously, okay, किस बेसिस में, on the basis of foreign passport and residential permit. अब वो they became the citizen of India by virtue of Article 5 Clause C of the Constitution, जो थर्ड आपने अभी यहाँ पास देखा हुआ है, Article 5 Clause C. ओके, ये वाला. अच्छा, आर्टिकल 5 क्लॉज सी को आपने देखा, और क्यों ऐसा, क्योंकि दे वर स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस केस में कोर्ट ने बोला कि नहीं, दे हैड फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट दे हैड द इंटेंशन ऑफ रिसाइडिंग इन इंडिया परमानेंटली. मतलब क्या है, डोमिसाइल का वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया वो यहाँ पास फेल हो रहा था, और देयरफॉर फॉर दिस रीजन ओनली पिटिशनर्स डिड नॉट हैव देयर डोमिसाइल इन इंडिया. इस वजह से जो है कोर्ट ने बोला कि वो पिटिशनर्स जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, बहुत पहले से इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, वो यहाँ की डोमिसाइल है, ये वो फेल कर जाते हैं स्टैब्लिश करने में, बिकॉज दे फेल टू स्टैब्लिश दैट दे हैव द इंटेंशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस. ओके, गेटिंग इट. अच्छा, कोर्ट ने इसी केस में रेडिट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ही एक्चुअली डोमिसाइल को एक की चॉइस, अपनी चॉइस का डोमिसाइल एक्वायर करने के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बोला था, और उसके उधर क्या बोला था कि एक्चुअली फॉर द एक्विजिशन, कोर्ट ने क्या बोला, फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ डोमिसाइल ऑफ अ चॉइस इट मस्ट बी शोन दैट अ पर्सन कंसर्न हैड अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड
State of mind. Okay, state of mind. अगर इस केस में कोर्ट बोलता है कि इफ ही क्लेम्स दैट he had acquired a new domicile new domicile okay at a particular time, he must prove that he had formed the intention of making his permanent home in the country of residence. Okay, कोर्ट साफ साफ बोलता है कि residence alone unaccompanied by this state of mind, that is he is going to reside permanently, is insufficient. Yes, insufficient. समझ रहे हो? तो यहाँ पास इस पर्टिकुलर केस में रैडर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक्चुअली इंटेंशन किस तरह का इंटेंशन, परमानेंट रिसाइड करने का इंटेंशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, ये इंटेंशन की वो इसे इंडिया का मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस को अपना परमानेंट होम बनाना चाहता है. ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल डिसाइड करने के लिए. रेजिडेंस अपने आप में कितने भी लंबे टाइम से हो, रेजिडेंस अपने आप में कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं. ठीक है, ये चीज थी लुई डी राइट केस का. ओके, नाउ आप इसी का दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखिए. नाउ see whenever any authority, okay, whenever any authority is called upon to decide, okay, called upon to decide even for the limited purpose of another law. Okay, whether a person is or is not a citizen of India. Okay? See, the authority must carefully examine the question in the context of provisions uh, of the Constitution and also this act that you have, that is Citizenship Act 1955. Okay, the authority must carefully examine the question in the context of the provisions in the context of the provisions of the Constitution. Okay, and very important legislation, that is Citizenship Act 1955. और ये एक्चुअली जो आपने यहाँ देखा, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू वर्डिक्ट इन द कोर्ट. ओके, और केस का नाम यहाँ पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू नो देन इट इज एक्चुअली लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. इतने केस आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन बात याद रखिए. समझ में? अच्छा, तो दिस इज अबाउट आर्टिकल 6. अगर मैं आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 की बात करूं, तो आर्टिकल 6 किससे डील करता है? इट एक्चुअली डील्स विद द राइट्स ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. ओके, so Article 6 actually makes special provisions for dealing with a peculiar situation that was created by migration of the people
from Pakistan. Okay, which was actually the result of the independence of India. You know that. Okay, so then it deals with what? It deals with the movement of people from Pakistan. आप ऐसे लिख सकते हैं Article 6 actually makes special provisions. Special provisions. इसमें ध्यान देना होगा आपको. Okay, special provisions for what? For dealing with a very peculiar situation, very special situation. Okay, which was created due to migration. इंडिया पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट की. ओके, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान. ओके, which was actually the result of the independence. तो ये किससे डील करता है? It deals with the movement. Okay, movement of people from Pakistan to India. Pakistan to India. Okay, and it also deals with the conditions to be fulfilled. For what? Before a person can be described as citizen of India. Okay, ऐसे लोग आर्टिकल 6 के अंदर में नहीं आते. मतलब these conditions are not covered by article 5. ओके, तो अगर सिटीजनशिप के पर्पस की मैं बात करूं, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ क्या है? आर्टिकल 6 एक्चुअली डिवाइड्स पीपल इनटू टू कैटेगरीज. ओके, डिवाइड्स पीपल इनटू टू कैटेगरीज. पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है पर्सन्स हु केम. अब यहाँ पास मैं आपको डेट तो दे रहा हूं, लेकिन ये इतनी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. 19 जुलाई 1948, इससे पहले जो आए. ठीक है, 19 जुलाई 1948 से. और दूसरा क्या है कि दोज हु केम ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948. ठीक है, 19 जुलाई 19. तो ये फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें, तो इन द फर्स्ट कंडीशन आप देखेंगे कि एन इमिग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया. समझ रहे हैं? इस कंडीशन की अगर बात करें, फर्स्ट कंडीशन की, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, तो दे विल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही, दैट इज द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, or his parents or his grandparents were born in India prior to independence. ठीक है, as defined by Government of India Act. कौन से? 1935. Government of India Act 1935. और अगर वो इंडिया में ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा था जब से वो माइग्रेट हुआ इंडिया. ठीक है, अगर कंफ्यूजिंग है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर फर्स्ट कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, तो एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू पीपल हु हैव माइग्रेटेड. ओके, तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि पीपल हु हैव माइग्रेटेड, हु हैव कम टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, then if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India, okay, prior to independence as defined by Government of India Act 1935, okay, and he had been ordinarily residing in India, okay, since the date of his migration, तब जो है ये सिटीजन बन जाएंगे. और सेकंड कंडीशन में क्या है? ये सेकंड कंडीशन जो है, अंडर दिस कंडीशन a person will be considered the citizen of India if
इफ ही, और इसके बाद फिर कंडीशंस है, और कंडीशंस क्या है कि आप कह सकते हैं कि अंडर अंडर सेकंड कंडीशन कौन सी, ये जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। ओके, so under the second condition, a person shall be considered a citizen of India if, अब यहाँ पास चार कंडीशंस कौन सी हैं देखिए। इफ पहली कंडीशन, if he or either of his parent or any of his grandparent okay was born in India as defined in the Government of India Act 1935। ओके, गेटिंग इट। और दूसरा एक्चुअली फोर कंडीशन, दूसरा क्या है, ही मस्ट मेक एन एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन फॉर व्हाट, फॉर सिटीजनशिप। और तीसरा फैक्टर क्या है, he must prove that he has resided in India for at least what, for at least 6 months। ओके, और फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है he must be registered as a citizen of India, okay, by an officer appointed by the Government of India, okay, under present constitution। So this is actually related to the second condition under Article 6। ठीक है, second condition under Article 6। okay, now comes Article 7। Article 7 क्या है, Article 7 actually provides for the termination of citizenship। okay, तो Article 7 देखिए, all these Article 5 to Article 11 क्या है, Part 2 में है। So it provides for termination of citizenship। Termination of citizenship if a citizen of India by domicile under which article, under Article 5, okay, और माइग्रेशन किस आर्टिकल में है, Article 6, okay, has migrated to Pakistan। ठीक है, आफ्टर, अब यहाँ फिर से डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहे तो याद रख, मार्च 1947। ओके, तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि Article 7 जो है, इट एक्चुअली ओवरराइड्स, ओके, इट एक्चुअली ओवरराइड्स Article 5 and 6, okay, except for those conditions where after migration that individual has returned to India under permit of settlement, okay, or permanent return। तो उस कंडीशन को छोड़ के जहां पास इंडिविजुअल इंडिया वापस आ जाता है,
उस छोड़ के वहां पास ये टर्मिनेशन की बात करता है। तो ये केस में आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 7 क्या है, ओवरराइड कर रहा है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊं कि एग्जांपल जैसे देखिए कि इफ देयर इज अ वुमन, ओके, एक कोई अ वुमन, ओके, बॉर्न एंड डोमिसाइल इन इंडिया, कोई ऐसी है जो बॉर्न भी है, डोमिसाइल भी इंडिया में। नाउ दिस वुमन वुड इफ गोइंग टू पाकिस्तान, going to Pakistan, after 1st March 1947, ठीक है, this woman if it does if she does so, then she would lose, okay, lose her citizenship, her Indian citizenship, okay, under which article, under article 7। इवन उस केस में भी जब उसका हस्बैंड जो हो वो क्या हो, कंटिन्यू कर रहा हो रिसाइड, मतलब he if even if his her husband remain in India, ओके, समझ रहे हैं इस बात को? ओके, तो दिस इज अबाउट आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या कर रहा है? आर्टिकल 8 एक्चुअली इट डील्स विथ, अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की, ओके, आर्टिकल 8, आर्टिकल 8, तो अगर आप आर्टिकल 8 को देखें तो ये किसको डील करता है? इट डील्स विथ actually the rights of the citizens, rights of citizenship, okay, of certain persons of Indian origin, okay, of Indian origin residing outside India, residing outside India। एक्चुअली क्या है कि आर्टिकल 8 एक्चुअली इट गिव्स द कंडीशंस अंडर विच राइट्स ऑफ citizenship are conferred on Indian nationals who are residing abroad, ओके, समझ रहे हैं आप? तो आर्टिकल 8 एक्चुअली इनसे रिलेट कर रहा है। वो क्या करता है, ये वो कंडीशंस प्रोवाइड करता है अंडर विच राइट्स ऑफ सिटीजनशिप आर कन्फर्ड ऑन पीपल हु आर ऑन इंडियन नेशनल्स हु आर रिसाइडिंग अब्रॉड, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 8। एग्जैक्ट वर्डिंग्स जानने की कभी जरूरत नहीं होती, जहां जरूरत होगी तो वो मैं आपको कराता हूँ, ओके। आर्टिकल 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9, तो आर्टिकल 9 किन से डील करता है? आर्टिकल 9 एक्चुअली उन केसेस को डील करता है जहां पास एक कोई इंडिविजुअल है who has actually voluntarily acquired the citizenship of any other country, okay, then he ceases to be a citizen of India, that is what article 9 is, okay। तो कह सकते हैं जैसे कि आर्टिकल 9 actually it deals with the cases where a person who has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state,
okay, of a foreign state, he actually ceases to be a citizen of India. Citizen of India. Okay. अच्छा, ये फॉरेन स्टेट एक्चुअली ये वर्ड जो है आप देख रहे हैं आर्टिकल 9 में, इट हैज बीन डिफाइंड बाय अनदर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 367 क्लॉज 3. ओके, एंड दिस प्रोविजन इज अगेंस्ट एक्चुअली डुअल और प्लूरल सिटीजनशिप. तो मतलब यहाँ पास क्या है, ये जो प्रोविजन है, इट इज अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट डुअल सिटीजनशिप. डुअल सिटीजनशिप इसको और भी बोलते हैं प्लूरल सिटीजनशिप. डुअल मतलब दो, प्लूरल मतलब कई. ओके, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल इसका पूछे तो, जैसे फॉर एग्जांपल एम एफ हुसैन थे, he acquired the citizenship of Qatar. Then if he acquired, when he acquired the citizenship of Qatar, then he actually ceased to be a citizen of India. Okay, he actually ceased to be citizen of India. तो एक चीज यहाँ पास ध्यान रखनी है कि फॉरेन स्टेट हैज बीन डिफाइंड बाय आर्टिकल 367 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पास फॉरेन स्टेट का मतलब क्या है? फॉरेन स्टेट और एनी स्टेट अदर देन इंडिया. ओके, अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 367 क्लॉज 3 एक्चुअली फॉरेन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बोलता है कि पार्लियामेंट किसी दूसरी कंट्री को हो सकता है कि उसे फॉरेन स्टेट डिक्लेयर ना करे. मतलब हो सकता है कि वो पार्लियामेंट के पास ये पावर है और प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर भी डिक्लेयर कर सकता है कि एनी स्टेट नॉट टू बी अ फॉरेन स्टेट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं. आर्टिकल 9 आप याद रखें कि इट एक्चुअली डील्स विद a person who has actually voluntarily acquired any citizenship of foreign state, he ceases to be a citizen of India. Okay, so this is about Article 9. Article 9. ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 10 के बारे में. आर्टिकल 10. ओके, आर्टिकल 10 क्या है? आर्टिकल 10 एक्चुअली कन्फर करता है किस चीज को? राइट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप. ओके, राइट ऑफ continuance of citizenship or continuation of citizenship, एक्सेप्ट सिर्फ उस केस में जहां पास किसी पर्टिकुलर पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा जो है वो ले ली गई हो, सिटीजनशिप ले ली गई हो. ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 10 confers confers what, confers the right confers the right of continuance of citizenship. Continuance of citizenship except when it is expressly taken away by law made by parliament. Okay, and not in any colorable exercise. ठीक है, मतलब एक्चुअली आर्टिकल 10 को अगर आप देखें तो इट एक्चुअली सेज दैट एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by the parliament continue to such. This is actually about rights of, जैसे कि मैंने बताया, right of continuance. Right of continuance. ठीक है, so this is about article 10. Okay,
लास्ट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, ओके। आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 11 एक्चुअली इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक अ लॉ रिलेटिंग टू ऑल मैटर्स which are related to citizenship, okay, including the acquisition and termination. So you can say that under article it actually empowers the parliament, empowers parliament to make law relating to all matters pertaining to citizenship, including acquisition and termination, acquisition and termination of citizenship, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इस आर्टिकल 11 के द्वारा एक्चुअली पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड बाय दिस आर्टिकल टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, ओके। इस एंड आल्सो नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या पार्लियामेंट में कोई लॉ पास किया है? हाँ, डेफिनेटली पार्लियामेंट ने एक्चुअली लॉ पास किया है। और वो लॉ कौन सा है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, ओके। फिर दूसरे लॉज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2003। और इसने क्या किया था? इसने एक्चुअली डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा था फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज थी। कंट्रीज के नाम जानना यहाँ पास उतना आपको जरूरी नहीं है। 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के केस में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने क्या किया था? इट एक्चुअली मेड द प्रोविजन फॉर डुअल सिटीजनशिप ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके। फिर आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसने क्या किया है? दिस एक्ट हैज एक्चुअली अमेंडेड द डेफिनेशन, ओके। किसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन है इलीगल इमिग्रेंट्स की। इलीगल इमिग्रेंट्स की डेफिनेशन को अमेंड किया है, ओके। और इसने इट एक्चुअली पेव द वे, ओके, इट पेव द वे टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज की। तो यहाँ पास मतलब समझिए कि एक तरह से क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स की डेफिनेशन में इसने चेंजेस लाए, ठीक है। समझ रहे हो? ओके, सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 11। दिस वाज अबाउट आर्टिकल 11। और इससे आपने मतलब ये आप जानते हैं कि दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू करंट आल्सो। So this actually concludes everything that is to be known from your examinations point of view regarding citizenship, okay। तो पॉलिटी में जो सिटीजनशिप का चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है, ओके। थैंक यू वेरी मच।